بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعذالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عدم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني تلو صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم
وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني سلب ثار مع إمام حدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكبات اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع.
اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. الله اللهم صل على محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि नूरुस्सक़लैन की जानिब से हर शब जुमा को तमाम मरहूमीन आलम के लिए मजलिस साल सवाब बपा की जाती है, और जो लोग इसमें यानी अपने वतन में अपने मरहूमीन की मजलिस नहीं करा पाते हैं, या इस कोरोना के ज़माने में जो मुश्किलात ईजाद हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मदरसा नूरुस्सक़लैन ने, मुअस्ससा नूरुस्सक़लैन ने इसको बखूबी 1 साल से ज़ायद हो चुका है कि इस फरीज़े को अंजाम देते चला आ रहा है। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है, जैसा कि आज हमारा ही प्रोग्राम फेसबुक पर इसलिए न चल सका चूँकि इंटरनेट की मुश्किल थी, और फेसबुक में थोड़ा सा हमारी साइट पर कुछ ख़राबी हो गई है, जिस वजह से हम फेसबुक पे इसको ऑनलाइन न कर सक रहे हैं। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऑनलाइन यूट्यूब पर इन तमाम मजालिस को नश्र कर सकें और उलूम आले मोहम्मद को आप तक पहुंचा सकें। आज जिन मोमिनीन ने हमारे पास अपने मरहूमीन के नाम भेजे हैं, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मैं उनके अस्मा को क़िराअत करूँगा, और उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इन मोमिनीन जिनके अस्मा हमारे पास पहुँचे हैं और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए हदिया पेश कर दीजिएगा, इरसाल कर दीजिएगा उनकी रूह को। ना अस्मा इस तरह से हैं: हामिद अली इब्न बरकत अली, अज़ीज़ आगा इब्न मुन्ने आगा, सैयद नसीम कौसर नकवी इब्न सैयद मुहिब हुसैन ख़ान, मुंतज़िर ज़ैदी इब्न काज़िम अली ज़ैदी, सैयद ग़ुलाम हुसैन सहर इब्न अब्दुल्ला, सैयद शाकिर हुसैन रज़वी इब्न सैयद अख्तर हुसैन रज़वी, मौलाना सैयद हैदर अब्बास रज़वी इब्न अब्दुल्ला, सैयद जुल्फ़कार हुसैन ज़ैदी पाशा इब्न सैयद अनवर हुसैन ज़ैदी, ग़ुलाम अब्बास इब्न बरकत अली, आगा नैयर हुसैन इब्न अब्दुल्ला, आबिद भाई इब्न वली भाई, अफसर हुसैन इब्न अथर हुसैन, सैयद नज़ीर अब्बास इब्न सैयद अब्बास, सैयद इमदाद हुसैन रज़वी इब्न सैयद मोहम्मद रज़ा, अनवारुल हसन इब्न आशिक़ हुसैन, ज़ीशान फ़ातिमा बिनत सैयद मोहम्मद सुल्तान हैदर, शहंशाह हुसैन इब्न मोहम्मद तक़ी, खुर्शीदा बानो बिनत अबुल हसन, कौनैन असग़र इब्न असरार हुसैन, सैयद इमाम अली रज़वी इब्न सैयद शेर अली रज़वी, असरार हुसैन इब्न अल्ताफ़ हुसैन, जमशैदी बेगम बिनत खुर्शीद हसन, जुल्फ़कार हुसैन इब्न पंजतन हुसैन, रईस हैदर इब्न अख्तर हुसैन, मोहम्मद यूनुस इब्न मोहम्मद रहीम, शम्सुन निज़ाम बिनत शम्सुल हसन, सैयद हैदर अब्बास इब्न सैयद नज़र अब्बास, अल्लामा अली हसन इमामी, ज़रदारी इब्न अब्दुल्लाह, ज़ैबुन्निसा बिनत हाजी मोहम्मद सादिक़, शहीद मुख्तार हुसैन ताऊ, सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह इब्न सैयद सरदार शाह, मोहम्मद मूसा इब्न आगा अली मिर्ज़ा, सैयद कासिम हुसैन इब्न सैयद कासिम हुसैन, सलमा बिनत मोहम्मद हुसैन नथहानी, नादिरा खातून बिनत अफसर हुसैन, रोशन बानो बिनत ग़ुलाम हुसैन भाई दामानी, हाजी तुराब अली इब्न हुसैन अली राजानी, खैरुन्निसा बानो बिनते शेर अली मर्चेंट, सैयदा ज़ीशान फ़ातिमा बिनते सैयद जावेद असग़र, हुसैन रज़ा इब्न शहंशाह हुसैन, सैयद नयाब हैदर ज़ैदी इब्न सैयद मीर महमूद हुसैन ज़ैदी,
मोहसिन अली इब्न अली मोहम्मद केशवानी, सरदार हुसैन इब्न अली बाज़ ख़ान, ज़ौजा करबलाई लतीफ़ हुसैन, हाजी अज़ीम अली इब्न हाजी मुस्तनद अली, सैयद अली नकी रज़वी इब्न मौलाना सैयद रज़वी, नसरीन फ़ातिमा बिनत फ़िदा हुसैन, सैयदा नसरीन फ़ातिमा नकवी बिनत सैयद फ़ैयाज़ हुसैन नकवी, इकबाल इब्न नबी बख्श, शेख ग़ुलाम हुसैन इब्न शेख रुस्तम अली, शम्स आरा नकवी बिनत रोशन अली, फ़ज़ल अब्बास इब्न शाकिर अली करबलाई, तबस्सुम ज़हरा बिनत मोहम्मद सिब्तैन, सैयद सग़ीर हुसैन नकवी इब्न सैयद असग़र हुसैन नकवी, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ैदी इब्न जाफ़र हुसैन ज़ैदी, मुमताज़ फ़ातिमा बिनत बख्शिश हुसैन, सुल्तान मुज़फ़्फ़र इब्न नियाज़ हुसैन, सैयद मोहसिन रज़ा ज़ैदी इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ैदी, सैयद अहमद अली इब्न असग़र अली, कनीस फ़ातिमा बिनत ज़ैनुल आबिदीन, ज़रीन फ़ातिमा बिनत सरदार हुसैन, महमूद अली इब्न असग़र अली, अंजुम इकबाल इब्न रज़ी हुसैन इब्न इकबाल हुसैन, अनीस फ़ातिमा बिनत ग़ुलाम रज़ा, अतहर ज़हरा बिनत रज़ी हुसैन, हसन यूसुफ़ इब्न शराफ़त हुसैन, तमीज़ फ़ातिमा बिनत हसन रज़ा, अज़ीज़ फ़ातिमा बिनत ग़ुलाम मेहदी, मोहम्मद जाफ़र इब्न ज़ैनुल आबिदीन, ज़ुल्फ़िकार अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन, साबिर अली इब्न असग़र अली, मुर्तज़ा हुसैन इब्न जाफ़र हुसैन, शमीमा खातून बिनत मुर्तज़ा हुसैन, मासूमा फ़ातिमा बिनत नसीम ज़फ़र, फ़रासत अली इब्न असग़र अली, मासूम इब्न अबू मोहम्मद, यावर हुसैन इब्न मोहम्मद मासूम, गज़ाला बानो बिनत मोहम्मद मासूम, तैयबा बानो बिनत शब्बीर हुसैन, ज़ैनब बेगम बिनत नसीम हैदर, फ़ातिमा बिनत मंजूर हुसैन, ज़हरा बिनत मोहम्मद अब्बास, अज़ीज़ फ़ातिमा बिनत मज़हर हुसैन, फ़ज़ीलत फ़ातिमा बिनत कैसर हुसैन, हुज़ूर आलम इब्न मुन्ना हुज़ूर, इस्मत जहाँ बिनत हसन अहमद, सैयद रईस हैदर ज़ैदी इब्न सैयद मुख्तार हुसैन ज़ैदी, सैयदा ज़रबानो ज़ैदी बिनत सैयद नबी हुसैन ज़ैदी, सैयदा खुर्शीद फ़ातिमा ज़ैदी बिनत सैयदा ग़ुलाम पंजतन ज़ैदी, सैयद नवाब हैदर ज़ैदी इब्न रईस हैदर ज़ैदी, बशीर हुसैन इब्न अशरफ अली, अनीस फ़ातिमा बिनत शबरात अली, तफ़ज़्ज़ुल हुसैन इब्न बशीर हुसैन, अक़ील हुसैन इब्न सैयद अली, हशमती बीबी बिनत विलायत हुसैन, शरीफ हुसैन इब्न लतीफ़ हुसैन, कनीस फ़ातिमा बिनत लियाक़त हुसैन, शफ़ीक़ फ़ातिमा बिनत सिफ़त हुसैन, जवाद हुसैन इब्न मकबूल हुसैन, शाहीन फ़ातिमा बिनत मोहम्मद कासिम, तनवीर हैदर इब्न मनाजिर हुसैन, मुमताज़ बानो बिनत ज़ुल्फ़िकार हैदर, मज़ारुल हसन इब्न शब्बीर अली इब्न अली, अनीसा खातून बिनत मुख्तार हुसैन, ज़ुल्फ़िकार हैदर इब्न बंदे हसन, सिब्त ज़हरा बिनत नज़र मोहम्मद, मज़हर हुसैन इब्न शब्बीर अली, शब्बन इब्न मज़हर हसन, हमीदन खातून बिनत इंतज़ाम अली, अबुल हसन इब्न इंतज़ाम अली, सग़ीर हुसैन इब्न शमशाद हुसैन, अली अहमद इब्न हैदर हसनैन, अली कौसर इब्न जवाद हुसैन, अली शब्बीर इब्न जवाद हुसैन, मलका ज़हरा इब्न जमील हसन, हैदर अली इब्न मकबूल हुसैन, लायक़ा बानो बिनत तुराब अली, सैयद इश्तियाक़ हुसैन नकवी इब्न सैयद इसहाक़ हुसैन नकवी, मुसफ़ हुसैन इब्न मज़हर हुसैन, रज़िया खातून बिनत इस्तिख़ार हुसैन, सफ़ीर हुसैन इब्न सग़ीर हुसैन, महफूज़ हुसैन इब्न शजर हुसैन, शहरबानो बिनत ज़व्वार हुसैन, मुजाहिद हुसैन इब्न मुसाइब हुसैन, शोएब ज़हरा बिनत मुसाइब हुसैन, आमिर हुसैन इब्न बाकर रज़ा, तनवीर हैदर इब्न मुशीर हुसैन, तनवीर हैदर इब्न बाकर हुसैन, अंजुम ज़हरा बिनत अनवर अली, मौलाना इक़्तिदार मेहदी इब्न बादशाह अली, नाज़िम हुसैन इब्न ज़ामिन हुसैन, नाहिद फ़ातिमा बिनत नाज़िम हुसैन, अय्यूब हुसैन इब्न मज़हर हुसैन, साक़िया खातून बिनत तैयब हुसैन, महबूब हुसैन इब्न मज़हर हुसैन, मरहूम अबुल हसन आरिफ़ी इब्न करार हुसैन आरिफ़ी, मरहूम अमीर ज़हरा बिनत मुश्ताक़ हुसैन, मरहूम मोहम्मद आज़म आरिफ़ी इब्न अबुल हसन आरिफ़ी, सईदा बेगम बिनत ज़ामी हुसैन, इरम ज़हरा बिनत अनवर रज़ा हाशमी, अज़्म शौकत इब्न सैयद फ़रहत हुसैन, इफ्तिख़ार हुसैन इब्न ग़ुलाम मुस्तफ़ा हुसैन, ज़वार हुसैन इब्न इफ्तिख़ार हुसैन, अतफ़ाल फ़ातिमा, नरगिस फ़ातिमा, शाहज़ान फ़ातिमा बिनत इफ्तिख़ार हुसैन, उम्मुल लैला, सलमा बानो, सितारा बानो, बीबी बानो बिनत शौकत हुसैन इब्न महफूज़ अली, मलिका बानो बिनत मुशीर अली, सैयद असग़र मेहदी काज़मी इब्न सैयद इमामत हुसैन काज़मी, सैयद इबाद हुसैन इब्न सैयद रियाज़, सैयद हैदरी बेगम बिनत सैयद इर्तज़ा हुसैन, सैयद शहज़ाद हुसैन रज़वी, मेहदी हुसैन रज़वी, सैयद शबी मुस्तफ़ा बाक़री इब्न सैयद हसन अहमद बाक़री, सैयद हसन मुस्तफ़ा बाक़री, सैयद हसन अहमद बाक़री, सैयद अब्बास बाक़री, सैयद आमिर हैदर बाक़री, सैयद शाज़मा हैदर बाक़री इब्न सैयद अमीर हैदर बाक़री, सैयद विलायत हुसैन नक़वी, नसरीन फ़ातिमा बिनत अलमदार हुसैन, सईदा बानो बिनत सादिक़ हुसैन, सैयद तनवीर हैदर नक़वी इब्न सैयद मनाजिर हुसैन नक़वी, सैयद ग़ुलाम अली रज़वी इब्न सैयद रहमत अली रज़वी, सैयद इरशाद हुसैन इब्न सैयद आबिद हुसैन, सैयद असग़र मेहदी काज़मी इब्न सैयद इमामत हुसैन काज़मी, सैयद इश्तियाक़ हुसैन नक़वी इब्न सैयद इसहाक़ हुसैन नक़वी, सैयद नाज़िरा बेगम बिनत मोहम्मद मुख्तार
ग़ुलाम अब्बास इब्न महफूज हुसैन, इरफान मुस्तफ़ा इब्न हसन मुस्तफ़ा, सैयद अब्बास अली इब्न अकबर अली, फ़ातिमा खातून बिनते अबरार हुसैन, सैयद इमाम अली रज़वी इब्न सैयद शब्बीर अली रज़वी, ज़किया खातून बिनते अली जान हुसैन, ज़फ़र हुसैन नकवी इब्न याकूब हुसैन नकवी, सैयदा नसीम फ़ातिमा बिनते सैयद इमाम अली रज़वी, सैयद वसी हैदर इब्न शमीमुल हसन, मोहम्मद मज़हर इब्न नफीसुल हसन, सैयद कनीस फ़ातिमा रज़वी बिनते सैयद नेमत हुसैन, सैयद मोहम्मद हाशिम तक़वी इब्न सैयद आगा तक़वी, सैयद जाहिदा बेगम, सैयद रईसा बेगम, सैयदा बेगम बिनते सैयद शमसाद अली नकवी, अज़ीज़ हैदर इब्न शाहिद हुसैन, शमशाद फ़ातिमा बिनते मसरूर अहमद, शहरियार हुसैन इब्न हुसैन, इस्मत आरा बिनते शाहिद हुसैन, कनीज़ ज़हरा बिनते शाहिद हुसैन, अज़ीज़न निशा बिनते मोहम्मद तकी, अता अब्बास इब्न ग़ुलाम सैयदैन, शब्बीर हसन इब्न अब्दुल्ला, सैयद निसार फ़ातिमा रज़वी बिनते सैयद इमाम अली रज़वी, सैयद इकराम अली रज़वी इब्न सैयद ग़ुलाम अली रज़वी, नाज़िमा परवीन बिनते मोहम्मद हुसैन इब्न सादत हुसैन, हैदर अली इब्न मकबूल हुसैन, लायक़ बानो बिनते तुराब अली, आले हसन इब्न हैदर अली, ताहिरा बेगम बिनते आशिक़, ग़ुलाम अब्बास इब्न रशीद अहमद, इक़बाल हुसैन इब्न ग़ुलाम अली, अली रज़ा इब्न इक़बाल हुसैन, हैदर अब्बास इब्न इक़बाल हुसैन, सरफराज हुसैन इब्न मुमताज़ हुसैन, अबू सईद अबू सलाम इब्न अब्बास, ग़ुलाम अबू अब्बास बिनते नौशाद अली, खुशी बिनते गाज़ी अब्बास, शमशीर बानो बिनते अस्करी हुसैन, ज़हरा बेगम बिनते मोहम्मद अब्बास, सैयदैन बिनते बहादुर अली, हुसैन अली, फ़रजंद अली, रेहाना बिनते ग़ुलाम अब्बास, रशीद अहमद इब्न राहिम शाह, खुर्शीद बानो बिनते अत्तार बिन अब्दुल्ला हुसैन, ख़तीबा बेगम बिनते ज़व्वार हुसैन, मोहम्मद आज़म रज़वी इब्न मोहम्मद हाशिम रज़वी, तहज़ीब फ़ातिमा बिनते ज़ाहिर हुसैन, तनवीर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद आज़म रज़वी, अज़हर इब्न मोहम्मद आज़म रज़वी, शमशीर फ़ातिमा बिनते अली हम्ज़ा, आरिफ रज़ा इब्न अली मुत्तकी, मोहम्मद काज़िम इब्न मोहम्मद अब्बास, सैयद नवाब हैदर ज़ैदी इब्न सैयद रईस हैदर ज़ैदी, नसीम हैदर इब्न तासीर हुसैन, सैयदा निसार ज़हरा बिनते सैयद अबरार हुसैन, असगरी बेगम बिनते ज़ामिन हुसैन, सैयद नायाब हुसैन ज़ैदी इब्न सैयद महमूद हुसैन ज़ैदी, फ़रहत हुसैन, हरावल हुसैन ज़ैदी, रफ़ाक़त हुसैन ज़ैदी इब्न शौकत हुसैन ज़ैदी, शौकत हुसैन ज़ैदी इब्न महफूज़ अली इब्न जीवन अली, सैयद अली हसन बाक़री इब्न सैयद इब्न अली बाक़री, फ़िरदौसी बेगम बिनते सैयद ज़ैनुल अबा ज़ैदी, राजदारी बिनते आले हसन बाक़री, सैयद तकी रज़ा काज़मी इब्न सैयद मूसा रज़ा काज़मी, सैयद नकी रज़ा काज़मी इब्न सैयद मूसा रज़ा काज़मी, सैयद अस्करी रज़ा इब्न सैयद मूसा रज़ा काज़मी, सैयद मूसा रज़ा काज़मी, सैयद शमसुद्दीन काज़मी, सैयद मुमताज़ रज़ा इब्न सैयद तकी रज़ा काज़मी, सैयद मुताहिर रज़ा काज़मी, सैयद तकी रज़ा काज़मी, सैयद तौफ़ीक़ रज़ा काज़मी, सैयद तकी रज़ा काज़मी, सैयद महमूद अहसन रज़ा काज़मी इब्न सैयद तकी रज़ा काज़मी, खुर्शीद फ़ातिमा बिनते सैयद तकी रज़ा काज़मी, सागिरा बेगम बिनते सैयद तकी रज़ा काज़मी, सुल्ताना बेगम बिनते सैयद तकी रज़ा काज़मी, असगरी बेगम बिनते सैयद ज़ैनुल आबिदीन, ज़किया बेगम बिनते सैयद ज़ैनुल आबिदीन, काज़मी बेगम बिनते सैयद ज़ैनुल आबिदीन, मीर मोहम्मद बाक़िर अली इब्न मीर हसन अली, साजिद अली नकवी इब्न डॉक्टर अफ़ज़ाल नकवी, सैयद इमदाद हुसैन रज़वी इब्न सैयद मोहम्मद रज़ा, सैयद बरकत हुसैन रज़वी इब्न सैयद मोहम्मद रज़ा, सैयद राहत हुसैन रज़वी इब्न सैयद मोहम्मद रज़ा, सैयदा अस्करी बेगम बिनते सैयद हुसैन रज़ा, मरहूमा अनवरी बानो बिनते मोहम्मद नकी, मोहम्मद हसन इब्न मरहमत हुसैन, अली हुसैन इब्न मरहमत हुसैन, अली जाफ़र इब्न मरहमत हुसैन, अख्तरी बानो बिनते मरहमत हुसैन, साजिदा बेगम, कनीस फ़िज़ा, मोहम्मद तकी, सैयदा मोहम्मदी बेगम बिनते अहमद अली, मरहूम नज़र अब्बास इब्न मोहम्मद अब्बास, रफ़ीक़ हुसैन इब्न फ़तेह मोहम्मद, ज़किया खातून बिनते ग़ुलाम हैदर, अली रज़ा इब्न रफ़ीक़ हुसैन, मोहम्मद इमरान इब्न दिलदार हुसैन, अबरार हुसैन इब्न रफ़ीक़ हुसैन, लख्त ज़हरा बिनते रफ़ीक़ हुसैन, गुलिस्ता ज़हरा बिनते अबरार हुसैन, चांद मोहम्मद इब्न आज़ाद हुसैन, हसीना बेगम बिनते आशिक़ अली, करबलाई बेगम बिनते मुस्तफ़ा हुसैन, शान अली इब्न असग़र अली, मलिका हसीना बानो बिनते हाजी अली, शेख मोहम्मद नवाज़ इब्न करामत अली, सैयद महमूदा परवीन बिनते सैयद अमानत अली रज़वी, शाह नूर बेगम बिनते बख्शी हुसैन, मोहम्मद हसन अली इब्न मोहम्मद नासिर अली, निसार अली राशिद इब्न ग़ुलाम अली राशिद, सैयद मुअय्यद हुसैन शाह काज़मी इब्न सैयद जमाल शाह,
काज़मी, सैयद इकबाल मेहदी इब्न सैयद अजहर हुसैन काज़मी, सैयद जलाल हुसैन इब्न सैयद हुसैन, सैयद मुजाहिद शाह बुखारी इब्न सैयद तबार हुसैन बुखारी, सैयद मुस्लिमा खातून बिनते सैयद एहसान अली, फ़िदा हुसैन इब्न इकबाल हुसैन, मोहम्मद अली इब्न सैयद शाह, सैयद हैदर नकी रज़वी इब्न सैयद ग़ुलाम हुसैन, सैयद सुल्तान अब्बास रज़वी इब्न सैयद हैदर नकवी रज़वी, अंजुम मकबूल इब्न रज़ी हुसैन इब्न मकबूल हुसैन, अनीस फ़ातिमा बिनते ग़ुलाम रसूल, अतहर ज़हरा बिनते रज़ी हुसैन, हसन यूसुफ इब्न शराफत हुसैन, तमीज़ फ़ातिमा बिनते हसन रज़ा, बेगम बिनते मेहदी हसन, मंजूर हुसैन, नकी इब्न सज्जाद हुसैन नकवी, सैयद सरवत हुसैन नकवी इब्न सैयद कुदरत हुसैन नकवी, शमशाद हुसैन नकवी इब्न सज्जाद हुसैन नकवी, मलका ज़हरा इब्न मुज़म्मिल हुसैन, तनवीर अब्बास इब्न ज़ाहिर हुसैन, फ़तेह अली इब्न अब्दुल्लाह, अबसार हुसैन बाकरी इब्न अंसार हुसैन बाकरी, रबाब बानो ज़ैदी बिनते रज़ी हसन ज़ैदी, इक़रार हुसैन बाकरी इब्न अबसार हुसैन बाकरी, सैयद आमिर हुसैन ज़ैदी इब्न सैयद आमिर हुसैन ज़ैदी, सैयद ज़मीर हसन ज़ैदी इब्न सैयद असग़र हुसैन ज़ैदी, कनीज़ फ़ातिमा बिनते ज़ैनुल आबिदीन, अहमद अली इब्न असग़र अली, हसन ज़ाहिद इब्न साबिर हुसैन, ज़िया फ़ातिमा बिनते सैयद आले हसन, मोहम्मद अब्बास इब्न खैरात अली, परवेज़ हैदर इब्न निसार हैदर, सैयद मोहम्मद इब्राहीम इब्न सैयद मोहम्मद वहीद, इंतज़ार हुसैन इब्न तकी हुसैन, हसन मेहदी इब्न ज़फ़र मेहदी, हाजी शेर अली इब्न नूर मोहम्मद बहरानी, सरवर हुसैन इब्न बंदे हसन, अब्बासी बेगम बिनते अली हुसैन, बेगम्मा बिनते आबिद हुसैन, रुक़ैया बानो, साबिर हुसैन काज़मी, मासूमा फ़ातिमा बिनते नसीम मुज़फ़्फ़र, मोहम्मद जाफ़र इब्न ज़ैनुल आबिदीन, अज़ीज़ फ़ातिमा बिनते ग़ुलाम मेहदी, सैयद अली रज़ा नकवी इब्न जर्रार हुसैन, सैयदा एजाज़ फ़ातिमा तक़वी बिनते मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हैदर इब्न सिराजुल हसन, शमीम फ़ातिमा बिनते मुलाजिम हुसैन, असग़र अली इब्न मेहदी हसन, समर अब्बास बिनते अमीर फ़ातिमा, मोहम्मद अब्बास इब्न ज़ैगम हुसैन, रानी दुर्र नजफ़ बिनते मोहम्मद हारून, ज़ैगम हुसैन इब्न जाफ़र हुसैन, बिल्क़ीस बेगम बिनते अली जान, बाकर रज़ा इब्न अली मुनीस, अनवर हुसैन इब्न इशरत अली। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन तमाम अस्मा के लिए एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम इनकी रूह को इसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अलहक़्क़ु बिलहक़् अन्नबिय्युल मुबय्यद व रसूलिल मुशद्दद व महबूबिल अहमद अलमक्कीयुल मदनी हाशिमी मौलाना व हादियना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन मिफ़्ताह व मिफ़्ताहुल जन्नह हुब्बुल मसाकीन। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ब्ल इसके कि मैं आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करूँ, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शुजा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन और रज़ा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन इन दोनों मरहूमों की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। एक बार मिलजुल कर सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले। शुक्रगुज़ार हैं हम अरकान
मुअस्ससा नूर सकलैन के और खुदावंद आलम इन तमाम अराकीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि जो इस वबा के ज़माने में कि जब हम सब परेशान हैं और ये अहले बैत का ज़िक्र हर हफ्ते किसी तरह से भी कोशिश करके बरगुज़ार करते हैं। दूसरे ये कि ये दोनों जवान कि जिनके लिए सूरह फातिहा हम और आपने मिल के पढ़ा, यकीनन खुदावंद आलम के वालिदैन को सब्र दे। बहुत सख्त मरहला है, एक साथ एक ही हफ्ते में इतनी सख्त मंजिल। बहरहाल सब्र के इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से लास्ट में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, चूँकि वाक़ई इससे पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कैसे सब्र किया होगा। अहले बैत का ज़िक्र हमारे सामने न हो या करबला का वाक़या हमारे सामने न होता तो वाकई ये मुसीबतें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। अज़ीज़ों, जो मैंने हदीस पेश की इसके हवाले से, चूँकि छठे इमाम की शहादत की तारीख़ भी आ रही है, इस हवाले से मैंने कहा इमाम की ज़िंदगी से कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए उल्गू या नमूना हों। इमाम की ज़िंदगी में चूँकि अज़ीज़ों हम और आप जब कभी कोई परेशानी या कोई मुश्किल आती है तो राह हल कहीं और तलाश करते, किसी और दरवाज़े पे जाते हैं, जबकि जब तक हमको हकीकी हल न मिल जाए, इसलिए कहा लिकुल्ले शैइन मिफ्ताह, हर चीज़ की एक चाबी है। हम और आप चाबियाँ कहीं और जगह से तलाश करते हैं या गलत चाबी लगाते हैं तो फिर ताला ख़राब तो हो सकता है, खुल नहीं सकता। आज दुनिया जो मुश्किलात में गिरफ़्तार है, परेशानियों से निपट रही है, उसकी वजह यह है कि हम चाबी कहीं और तलाश कर रहे हैं या किसी और चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इमाम की ज़िंदगी या इमाम ने जो हमारे लिए उल्गू या नमूना दिया है या जो हमारे लिए चाबी दी है, मैं इंशाअल्लाह आज कोशिश करूँगा कि इमाम के ज़रिए से जो चाबियाँ मिली हैं हमको या उलमा ने जो बताई हैं, ये दो पहलू से, कुछ छठे इमाम के ज़रिए जो आई थी तो जो चीज़ें हमारे लिए आई हैं कि उनके ज़रिए हम अपनी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। हम किसी और दरवाजे पे जाते हैं जबकि मुश्किल का हल किसी और जगह पे है। यहाँ पे भी पैगंबर की हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चाबी है और जन्नत की चाबी क्या है? हुब्बुल मसाकीन, हुब्बुल फ़ुक़रा। ये आइए छठे इमाम की ज़िंदगी में देखते हैं, चूँकि तज़किरा मुझे छठे इमाम से। अज़ीज़ों, दो चीज़ें इंसान के लिए मुहिम हैं, एक ज़बान है, एक दिल। ये दो चीज़ें अगर ज़बान सादिक है तो हर आदमी एतबार करता है, अगर दिल पाक है तो शराफत इंसान की ज़ाहिर होती है, इंसानियत इंसान के दिल से ज़ाहिर होती है अगर दिल पाकीज़ा है। और खुदावंद आलम ने अपने रहनुमाओं के लिए, जो हमारी हिदायत के लिए रहनुमा भेजे खुदा ने, उन सब को दो चीज़ों से माला माल किया। दिल में उलूम व कमालात इतने रखे कि कभी किसी के सामने जहालत का इकरार न किया, हमेशा सलूनी क़ब्ल तफ़क़दूनी का दावा किया। और सदाकत ये थी कि रसूल के सामने कुफ़ार ने यही आगे कहा, वो रसूल नहीं मानते थे, लेकिन क्या कहा कि अगर आप कहें कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है और हम जाएं, हमें नज़र ना आए तो हम अपनी आंखों पे शक करेंगे, लेकिन आपकी ज़बान पे शक नहीं है। रसूल आखिरी नबी को भी सादिक इतना मानती थी पब्लिक, और लोग जो रसूल नहीं भी मानते थे वो भी इतना सच्चा मानते थे। और फिर इसी तरह सादिक़ आले मोहम्मद का लक़ब ही सादिक पड़ा। ये सदाकत, और सदाकत का ये हाल है कि मुबाहले में नसारे नजरान पीछे हट गए आपकी सदाकत को देख के। हमें वाकई फ़ख्र करना चाहिए, खुदावंद आलम ने हमारे लिए ऐसे ऐसे रहनुमा रखे हैं, ऐसे ऐसे हिदायत करने वाले हमारे लिए भेजे कि हम इफ्तिखार और फ़ख्र करते हैं अपने आइम्मा के ऊपर। चूँकि दुनियावी रहनुमा सिर्फ दुनियावी चीज़ें बताते हैं, जितने भी रहनुमा हैं हमारे आइम्मा के अलावा, वो दुनिया में किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारना है, दुनियावी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि हम आखिरत में भी आपके काम आएंगे। यहाँ सब कुछ बता देते हैं, ये कीजिए, ये कीजिए, इस तरह से ज़िंदगी गुजारिए, इस तरह से कीजिए, कैसे भी करके आपको ज़िंदगी गुजारना है ऐश की। लेकिन उस दुनिया में हम काम नहीं आ सकते, लेकिन हमारे आइम्मा इस दुनिया में भी काम आते हैं, उस दुनिया में भी काम आते हैं। ये हमारे आइम्मा का कमाल है। और यहाँ तक कि ये जो कहते हैं, जब हम कहते हैं कि मौलाए कायनात कब्र में पहले आएंगे, मरने वाले के सराहने आते हैं, दुनिया एतराज़ करती है कि भाई इतनी मनो मिट्टी के नीचे मौला कैसे आएंगे।
आप कहते हैं कि मौलाए कायनात कब्र में आएंगे, मौलाए कायनात आपके पास पहुंचेंगे, कैसे? इस मिट्टी के अंदर अली कैसे आएंगे? तो हम तो यही कहते हैं कि जिस अली को दीवारे काबा ना रोक सकी, उसको ये मिट्टी क्या रोकेगी? हमें इफ्तिखार है अपने आइम्मा पर, हमें फख्र है अपने मासूमीन पर कि वाकई हमें ऐसे मासूमीन, ऐसे आइम्मा खुदावंद आलम ने हमारे हिदायत के लिए भेजे कि जो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आते हैं। दो चीज़ें, दिल उलूम इतने थे कि जब भी कोई सवाल, और ख़ासकर दो इमामों को हमारे सबसे ज़्यादा इल्म फैलाने का मौका मिला, या पाँचवें इमाम या छठे इमाम, और कितने हज़ार शागिर्द तरबियत किए इमाम ने, और मज़हब का नाम भी मज़हब जाफरी पढ़ा। ये कमाल ये इमाम का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो इमाम के अंदर ये कमाल था, नहीं, हमारे सारे आइम्मा सब के अंदर ये कमालात थे। जिसको मौका मिला उन्होंने कमाल दिखाया। इसी वजह से आप पहले इमाम के हदीस को आखिरी इमाम से मंसूब कर दीजिए, आखिरी इमाम के हदीस को पहले इमाम से मंसूब कर दीजिए। और यही वजह है कि जिस इमाम खुमैनी की इसकी बरसी आ रही है, उन्होंने कहा था कि अगर एक देहात में, एक शहर में 1,24,000 अंबिया जमा हो जाएं तो आपस में इख्तलाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका हदफ एक है। लेकिन अगर किसी शहर में 10 उलमा जमा हो जाएं, ये हमारे लिए इबरत। क्यों? क्योंकि उनका हदफ एक था। क्या हमारा हदफ एक नहीं है कि हमारे यहाँ क्यों इख्तलाफ है? ये जो आज सारी मुश्किलात हमारे सामने खड़ी की जा रही है, ये सारी मुश्किलात के बानी हम हैं। आप सब, हमें इशारा करने को, आप सब जानते हैं क्या है, क्या से क्या चीज़ें लाई जा रही हैं, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे ईरान हो। यकीनन हम इफ्तिखार करते हैं इमाम खुमैनी के ऊपर भी कि जिन्होंने वाकई शियत को पूरी दुनिया में पहचानवाया। आज उनका एहसान है कि शियत पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है, वरना कौन जानता था शिया कौन है। ये इनकलाब के बाद शिया पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और हम ये भी फ़ख्र करते हैं कि वाकई पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है कि जहाँ से अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह टीवी और रेडियो से आवाज़ आती है। ये हमें देख के और सुन के फ़ख्र होता है कि वाकई कोई पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो मजलूम का साथ देता है, और आज दुनिया इसी के नाम से जानती है। ये इमाम कि जिनके अंदर वाकई कमाल ये था कि इमाम टाइम के इतने पाबंद थे कि जब नजफ में निकलते थे, आपने सुना होगा बारह, जब नजफ में निकलते थे तो लोग अपनी घड़ी का टाइम मिलाते थे। ये दर्स दिया था हमारे लिए कि अगर हम भी वाकई टाइम के पाबंद हो जाएं तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सारे आइम्मा, हमने कहा कि एक इमाम की हदीस दूसरे इमाम से आप मंसूब कर सकते हैं। लिहाजा एक इमाम ने कहा, इसीलिए कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं, हमारे सारे आइम्मा। अब आइए एक दो सिर्फ इशारा सवालात के कि जो इमाम से किए गए, चूँकि देखें दो तरह, ज़बानी सदाकत और फिर इल्म का कमाल ये था कि जो भी पूछा गया इमाम ने हमेशा उसका जवाब दिया। अपनों ने नहीं, गैरों ने भी पूछा, और गैर इसलिए आते थे ताकि इमाम को ऐसे ऐसे सवालात करते थे कि इमाम मजबूर हो जाएं ना कहने पर। लेकिन जिसका इल्म इलाही इल्म होता है, आया अब्दुल्ला दिसानी छठे इमाम के पास, और आने के बाद कहता है मौला इमाम नहीं मानता, वजूद खुदा का इनकार करता है, और इस तरह से कि चैलेंज करके पूरे शहर में घूम रहा है और बातें ऐसी करता है, हर धर्मी ऐसी है कि कोई उससे बहस करने को तैयार नहीं, उससे बात करने को तैयार नहीं। लिहाजा उसका सर और बुलंद हो गया कि कोई मुझसे मुबाहिसा नहीं कर सकता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। इमाम ने कहा बुलाओ, वो आया, मैं वजूद खुदा का मुनकिर हूँ, मुझे आपसे मुबाहिसा करना है। कहा बिल्कुल आ जाओ। आया, और आने के बाद इमाम ने पूछा तेरा नाम क्या है? अब उसके पास जवाब तो था नहीं, तो भड़क गया कि आपने ना सलाम किया, आपका अखलाक तो ऐसा नहीं है, ना कलाम कोई, सिर्फ डायरेक्ट आप नाम पूछ रहे हैं, और उठा और उसके बाद चला गया। लोगों ने कहा मौला क्या हुआ? कहा वो हार गया और चला गया। कहा मौला ना बहस हुई, ना मुबाहिसा हुआ, ना कोई सवाल हुआ, ना जवाब हुआ, वो कैसे हार गया और चला गया? इतनी जोरों शोर के साथ आया था बहस करने और इतनी खामोशी से उठ के चला गया। कहा चूंकि उसका नाम था अब्दुल्ला, उसका नाम था अब्दुल्ला, और जब मैंने उसका नाम पूछा तो अगर न बताए तो जहालत, अगर बताता है अब्दुल्ला
तो फिर अगला सवाल ये होगा कि जब अब्दुल्ला तू नाम अपना बता रहा है, जब अल्लाह ही नहीं तो बंदा किसका है तू? लिहाजा वो समझ गया और चुपके से निकल गया। यही शख्स कहता मौला खुदावंद आलम ने शैतान को खल क्यों किया है? एक दो नमूने सब आपके सामने पेश कर, फिर मैं मिफ्ता जो मैंने अर्ज किया कि इमाम ने कहा है जो चाबियां, जी मुश्किल की चाबियां जो इमाम ने बताई हैं वो मैं आपके सामने एक दो अर्ज करूंगा। ये नमूने के तौर पर कि इमाम ने जो जवाबात दिए, शैतान को खुदावंद आलम ने क्यों खल किया? जब उसको पता था कि दुनिया में जाके लोगों को गुमराह करेगा, क्यों खल किया? तो इमाम ने कहा कि शैतान की वजह से खुदा का ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बंदों का तो नुकसान हो रहा है, का बंदों का भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि खुदावंद आलम ने शैतान को पैदा किया। शैतान सिर्फ वसवसा कर सकता है और उसके मुकाबले में खुदा ने अक्ल को रखा है। अगर अक्ल पे अमल करे इंसान तो मासूम फरिश्ते बन सकते हैं, और अगर वसवसे पे अमल करेगा तो शैतान का ताबेदार बन जाएगा। और दूसरी बात, खुदावंद आलम ने शैतान को खल्क नहीं किया। शैतान तो मुकर्रबे बारगाह था, सजदे करता था, सिर्फ एक सजदे का इनकार किया तो बारगाह से निकाल दिया। और वो भी इतना मुवाहिद कि कहा गैरुल्लाह का सजदा मैं नहीं कर सकता, हुक्म खुदा के बावजूद भी मैं गैरुल्लाह का सजदा नहीं करता। आज दुनिया पूछती है कि मौलाना आप शैतान से इतना डराते हैं, इतना बार बार शैतान का तस्करा कर, तस्वीर तो दिखा दीजिए कि शक्ल का है कि मैं देख के पहचान लूं कि ये शैतान है। भाई 1400 बरस पहले क्या है, कुरान जब नाजिल हुआ या जब शैतान निकाला गया तो उस वक्त तो कैमरा ईजाद भी नहीं हुआ था, कैमरा बना भी नहीं था कि कोई तस्वीर खींच चुक के शैतान की दिखा दे। और आज तो कोई इम्कानी में नहीं है, उस ज़माने में तो था। लेकिन कुरान ने तस्वीर शैतान की खींची है। वो क्या कि जो हुक्म खुदा को ना माने, इमाम ने कहा ये हुक्म खुदा से उसका सजदा करना, जनाब आदम का सजदा हुक्म खुदा से था। हुक्म खुदा पे खुदा का सजदा हुआ, हुक्म खुदा हुआ। वाकई बंदा वही है जो हुक्म खुदा को माने। आज दुनिया में अगर शैतान को देखना है तो देख लीजिए, जो हुक्म खुदा के बावजूद भी रसूल की जियारत और रसूल की जियारत को बिदअत बताते हैं। शैतान की तस्वीर आज देखना है तो देख लीजिए कि भाई जो हुक्म खुदा से, खुदा के हुक्म से भी आदम का सजदा, खलीफतुल्लाह का सजदा न करने पे तैयार हुआ वो शैतान था। आज भी जो हुक्म इलाही से रसूल और आले रसूल की जियारत को बिदअत समझते हो वही शैतान है। कुरान ने तस्वीर खींची, शैतान को क्यों खल्क किया इमाम ने बताया। आप पूछता मौला एक सवाल और, ये सवालात मुसलसल इसलिए हो रहे हैं कि इमाम को कहिए खुदावंद आलम ने ज़बीहा और मुर्दे में फ़र्क क्यों रखा है, ये हलाल है ये हराम, ज़बीहा हलाल है मुर्दा हराम है। इमाम ने कहा दो वजह है इसकी, पहली वजह तिब्बी है और दूसरी वजह अखलाकी है। दो वजह है इसकी। का क्या? का तिब्बी वजह यह है कि ज़बीहे का खून निकल जाता है, अगर खून जानवर के जिस्म से ना निकले तो वो गोश्त के लिए नुकसानदेह है, और मुर्दे का खून चूंकि बाहर नहीं निकलता ये इसलिए नुकसानदेह है, इसलिए नहीं खाया जाता। और अखलाकी वजह यह है कि चूंकि उस पर नाम इलाही लिया जाता है इसलिए लिहाजा वो हलाल है, और ये बगैर नाम खुदा के इसलिए हराम है। का तो खुदावंद आलम इसको भी हलाल कर सकता था, फिर कहता अगर खुदा चाहे तो इसको भी हलाल कर सकता था। का लेकिन खुदावंद आलम ने कभी कोई नुकसानदेह चीज़ को हलाल नहीं किया है, चूँकि खून इंसान के जिस्म, खून खाने से इंसान संगदिल हो जाता है, और जब खून इंसान के जिस्म में जाएगा तो उससे जजाम के जरासीम फैलते हैं, लिहाजा खुदावंद आलम ने इसको हलाल नहीं किया। का फिर मछली, फिर आगे पूछता है फिर मछली जब बाहर आके पानी के मर जाती है तो वो हराम हो जाती, हलाल क्यों है? का मछली का ज़बीहा यही है कि पानी के बाहर आके मरे। का लेकिन उसका खून, का लेकिन जानवर का खून और है, मछली में खून इतना नहीं होता कि उसके गोश्त को नुकसान पहुंचा सके, लिहाजा खुदावंद आलम ने उसका ज़बीहा यही करार दिया है। ये सिर्फ इशारतन मैंने अर्ज किया कि इमाम से आया सवाल करने। अब आइए, इमाम ने हमारे लिए जो कुछ नमूने करार दिए हैं कि हम उन चाबियों और उन किलीद के ज़रिए से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि जो मैंने कहा कि मैंने बाज़ लोग गलत रास्ते से जाते हैं जिसकी वजह से मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हैं।
हुकूमत ले लीजिए आप, हुकूमत हासिल करना गलत नहीं है, गलत रास्ते से हुकूमत अपनाना गलत है। उसकी मिसाल दे दूं, जनाबे सुलेमान ने दुआ की, हबली मुल्कन ला यंबगी, ऐसी हुकूमत चाहिए जो ना पहले किसी को मिली हो ना बाद में किसी को मिले। दुआ की और खुदावंद आलम ने दी हुकूमत। लेकिन उम्र साद जो हुकूमत चाह रहा था वो इमाम को शहीद करके हुकूमत चाह रहा था। रास्ते दोनों गलत रास्ते से जा रहा था। हुकूमत हासिल करना गलत नहीं है। या और आइए, इमाम के पास एक शख्स आया, छोटे इमाम के पास, आगे कहता मौला बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए रोज़ी की बरकत के लिए। इमाम ने कहा जा तू भी कोशिश कर, तलाश कर, मेहनत कर, मैं भी दुआ करता हूँ। दरवाजे से बाहर निकला था कि देखा एक बड़ी थैली अशरफी की, तकरीबन 600-700 दीनार उसके अंदर। अब वो पेशो पश में कि क्या करें, उठाएं ना उठाएं। 700 दीनार। इमाम के दरवाजे से भी बाहर ही निकला था कि वो थैली नजर आई उसको, सोचते हुए आखिर में उठा लिया उसने। हम और आप तो जानते हैं कि क्या हुक्म है, उठा सकते या नहीं उठा सकते। उस शख्स ने उठाया, लेके चला बाजार की तरफ। बाजार में एक शख्स को एक दुकान पे देखा कि बहुत परेशान है, चेहरा उतरा हुआ है। पूछा क्या बात है? कहा कुछ अशरफी थी जो मैं लेके आ रहा था, रास्ते में गिर गई। उसने निशानियां पूछी, पता चला यही है जो ये लिए है। अब इसके दिल में नहीं आया कि मैं ये रख लूं, इसने वापस कर दिया। वो भी इंसाफ पसंद आदमी था। उसने उसमें से 70 दीनार निकाले और इस शख्स को हदिया और गिफ्ट के तौर पे दे दिया। वो 70 दीनार लेता है और फिर मौला के पास आता है। कहा मौला आपकी दुआ में निकला, और इस तरह से पूरा वाक़या उसने सुनाया। मौला ने भी 30 दिरहम और दिया। कहा तेरे ये 70 उस 100 से बेहतर हैं जो तू अगर हराम के रास्ते से ले लेता। ये 70 दिरहम खैरुम, बेहतर है उस 700 दीनार से जो अगर तू 7 गलत रास्ते से लेता। 30 दिरहम और मौला ने दिए। ये नहीं अगर हम गलत रास्ते से जाते हैं, और वो भी वाक़या आपके सामने हो कि वो मौलाए कायनात जब मस्जिद में दाखिल हुए और बाहर घोड़े को एक आदमी के हवाले किया, कहा इसको देखता रहे, मैं बाहर आता हूँ। इमाम अंदर गए, जब तक वो शख्स आपके घोड़े की ज़रा और ढाल लेके जाके बेच देता है। इसे मैं रास्ते आप सब जानते हैं, इसमें इसको इशारा करने की जरूरत थी। अज़ो मिफ्ताह, चाबी हर एक की इमाम ने बताई है। और आगे आइए, मैं ये सिर्फ वाज़े करने के लिए कि इंसान गलत रास्ते से, इमाम के फर्जंद हैं मोहम्मद दीबाज के नाम से मशहूर हैं, मोहम्मद जाफ़र। बाद में उन्होंने खिलाफत का भी दावा किया। इमाम के पास आए, ईरानी में उनका इंतकाल हुआ और दफन है। इमाम के पास आए, आगे कहते बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर रखा है, परेशानियाँ बहुत हैं, कोई इंतज़ाम कर दीजिए। क्या कितना पैसा है तुम्हारे पास? का 40 दीनार, सिर्फ 40 दीनार। का उसको जाओ सदका कर दो, जाओ उसको सदका कर दो। हम में से कोई होता तो क्या कहता, पूरी सारा सरमाया जो हमारे पास है वो 40 दीनार, और उसको भी आप कह रहे हैं कि जाके सदका कर दो। लेकिन सुना और बेटे ने जाके 40 दीनार सदका दे दिया। इमाम ने कहा लिकुल्ल शैइन मिफ्ताह, वो मिफ्ताह हो रिज़्क़ अस-सदका। रिज़्क़ की चाबी सदका है। उसने सदका दिया, अगले दिन 400 दीनार उसको आके किसी ने दिया। ये इमाम बताना चाह रहे हैं कि हम जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं वो रास्ता हक नहीं है। सदका दिया और अगले दिन 400 दीनार मिल गए। और आइए आपको आप सब मिसाल पेश करूं। इमाम के दूसरे फर्जंद थे जनाब इस्माइल, जिनसे आज इस्माइली पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इमाम के फर्जंद। और वो तो अच्छा हुआ कि इमाम की ज़िंदगी में ही उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में देखिए कितने इस्माइली पाए जाते हैं।
49 या 50 मौलाना बेहतर जानते हैं, 40 या 50 उनके 49 या 50 अब तक इमाम हो चुके हैं, एक के बाद एक। और जनाब इस्माइल से उन्होंने शुरू किया, जबकि इमाम ने दिखाया था बुला के कि देख लो इनका इंतकाल हो चुका है। उनका अपने ज़माने में देखिए हम और आप किस तरह से हल करते हैं। इख्तलाफ हुआ बीवी से, तो जनाब इस्माइल ने किताबों के मुताबिक अपनी बीवी को तमाचा मार दिया। तमाचा मारा और उसके 2 दिन बाद या उसी दिन उनके बुखार आया और शदीद बीमार हो गए। इमाम एक हदिया ख़रीदते हैं, एक गिफ्ट, वहबा लहा शयन, कुछ इमाम ने ख़रीदा कहना उनको हिबा करने के लिए, और लेके बहू के पास आए। इमाम की बहू इमाम के पास आए और आने के बाद इमाम कहते हैं कि बेटे को माफ़ कर दो, ये जो बुखार है उसके ये उसी तमाचे के नतीजे में है। ये नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, आप सब तो माशाल्लाह इसकी तबलीग करने वाले हैं। जो मारा था उस मारने के नतीजे में, चूँकि अच्छे लोगों को जब कोई गुनाह करते हैं फ़ौरन को यहाँ पे दुनिया ही में उनकी सज़ा हो जाती है ताकि वहाँ ना झेलना हो। क्या उसी मारने के नतीजे में जो बुखार है ये कफ़ारे के तौर पे है, लिहाजा तुम माफ़ कर दो। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर इख्तलाफ होता है तो घर वाले और ज़्यादा हिस्सा लेने लगते हैं, बजाय इसके कि मियाँ बीवी के इख्तलाफ को हल करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर वाकई घर वाले सही हों, लड़की के भी लड़के के भी, तो कभी कोई इख्तलाफ बुजुर्ग चाहे तो इख्तलाफ को हल कर सकते हैं। इमाम ने बाकायदा नमूना पेश किया। इमाम ने क्या किया, इमाम ने हदिया बीवी को दिया और कहा कि माफ़ कर दो, बच्चे ने खता की है, इज्तिबा किया है, लिहाजा उसकी बिना पे उसके कफ़ारा है। यह है हम किस रास्ते से वारिद होते हैं। अब आइए हदीस में आपके सामने पेश करूँ 4 चीज़ें, 4 तरह के लोगों पे इमाम ने ताज्जुब किया है कि अजिब तो लिमन यफ़ज़अ मिन अरबा, 4 चीज़ें जिसके पास हैं उसके बावजूद वो परेशान हाल हो, मुझे ताज्जुब है। 4 तरह के लोगों में मुझे ताज्जुब है। लिमन खाफा, किसके ऊपर ताज्जुब है, जो डर रहा है। आज हमारे यहाँ के माहौल इस तरह बना दिया गया है, हिंदुस्तान में खासकर माहौल ऐसा बना दिया गया कि लोग कोरोना से ज़्यादा खौफ से मर रहे हैं। हकीकत यह है नहीं है, आज कोरोना से ज़्यादा लोग डर से मर रहे हैं। इमाम कहते हैं लेमन खाफा, अगर कोई डर रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यह आयत कब नाजिल हुई, तो इमाम ने कहा अगर आप डर रहे हैं, लेमन खाफा, खौफ है, तो क्या कहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसकी बार बार तकरार करें आप। और ये तकरार करने के लिए ऐसे नहीं कहा गया आप घर में बैठे हाथ पे हाथ रख के तकरार किए। ये आयत कहाँ नाजिल हुई थी, जंगे ओहद में, जब मुसलमान 70 शहीद देने के बाद घबराए हुए थे और रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह ये फिर से अबू सुफियान हमला करने वाला है, और अगर वाकई दोबारा हमला कर देता तो सारे के सारे कत्लेआम में ख़त्म हो जाते। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह कहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये बार बार मुसलमान तकरार करें। यहीं से आपको वाज़े हो जाता है कि देखें जंग करने के बाद, कत्ल होने के बाद, ये सब होने के बाद भी अगर आप अब भी खौफज़दा हैं तो इस आयत की तकरार करें। ये इमाम ने चाबी दी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आज हमारे यहाँ हालात कैसे बना दिए गए हैं। इस हालात में अगर खौफ ज़्यादा तारी हो रहा है तो ये आयत बार बार रिपीट की है, कुरान की सूरह आल इमरान की आयत है। फिर इमाम फरमाते हैं उसके बाद अगर गम और गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा गालिब आ जाए, किस तरह से कि फिर आप जगह से घूम के आए, कहीं से भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हैं, चारों तरफ से मुश्किलात और परेशानियां घेरे हुए हैं और गम इतना ज़्यादा है कि हर तरह से भी आप कोशिश कर डालें लेकिन कुछ आपके ऊपर फ़र्क नहीं आ रहा है, तो इमाम ने क्या कहा, आपको इस आयत की तकरार कीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत की तकरार कीजिए। उसके बाद कह रहे इमाम कि अगर आपके खिलाफ अब जो हालात हैं, आपके खिलाफ अगर साजिश हो रही है तो क्या करें। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। कोई मुसलमान जाता है हॉस्पिटल, कितनी जगह से इत्तला मिली कि मुसलमान जाता है तो वापस नहीं आता,
हॉस्पिटल गया तो वापस नहीं आना है। इमाम ने कहा अगर आपके खिलाफ इस तरह हालात आ जाएं, आपके खिलाफ साजिशें हो रही, मकर किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है? उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इस आयत की तकरार कीजिए, इस आयत की तकरार कीजिए। हमारे पास मौजूद है चीज़ें, लेकिन हम दूर हैं दर अहले बैत से। दर अहले बैत से दूरी का नतीजा है कि हम परेशान भी हैं, हमारे खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं, और हम गमों से अपने आप को चूर किए हुए हैं। और इमाम ने और भी चाबियां जो अता की इमाम ने। अब इल्म के लिए इमाम से किसी ने पूछा, मौला इल्म की चाबी क्या है? मिफ्ताहिल इल्म क्या है? इल्म की चाबी क्या है? मिफ्ताहुल इल्म का सवाल। अगर इल्म में इजाफा करना है तो सवाल कीजिए, जितने ही सवाल बढ़ता जाएगा उतने इल्म में इजाफा होता जाएगा। ये चंद नमूने थे जो मैंने आपके इमाम के हवाले से अर्ज किए। इमाम ने अब आइए एक दो मराजे के हवाले से मैं आपके, उन्होंने क्या, चूँकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा हमारे सामने पेश किया। सिर्फ दो मरजा के आपके सामने नमूना पेश करूँ। एक हसन अली नौखुदकी जो मशहद में दफन है, और एक मैं अपना खुद का, जब मैं नजफ़ गया सद्दाम के ज़माने में, सद्दाम का दौर था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जिस ज़माने में ज़ियारतों पे पाबंदियाँ थी, 40 के दिन हम लोग करबला पहुँचे तो सन्नाटा था करबला में, और रात में दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। शब 40 पहुँचे 10-11 बजे रात में, तो पता चला गेट बंद हो चुका है हरम का। उसके बाद हम नजफ़ आए ज़ियारत के लिए। नजफ़ में ज़ियारत करने के बाद आयतुल्लाह गरवी, पहले आगे सिस्तानी से मुलाकात हुई, फिर आयतुल्लाह गरवी थे उस ज़माने में, आप सब जानते हैं। उनका भी ताज़ा कुम में भी शहरिया शायद शुरू हुआ था। आयतुल्लाह उज़्मा गरवी थे, उनसे जब हम लोग मिलने गए, 2-3 तालिब इल्म थे नजफ़ कुम के, जब उनसे मुलाकात करने गए और उनसे कहा आगा कोई हमारे लिए हदिया, कोई गिफ्ट, जबकि उनके मुलाकात का टाइम नहीं था। 3-4 बजे वो मुतालिया कर रहे थे अपने किताब खाने में बैठे। जब उनके पास गए, चूँकि जब ये पता चला कि कुम से आए हैं, तो कहा भेज दीजिए, वहीं डायरेक्ट किताब खाने में मुलाकात हो जाएगी। जब उनसे मिलने के बाद कहा कि आगा कोई हदिया आपसे चाहिए, का जो आप पढ़ते हैं उसी पे अमल करें, इससे बड़ा और हदिया का नहीं। आपकी ज़िंदगी और आपका तजुर्बा और है, और हमारा तजुर्बा और है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए नमूने अमल हो। अब उनकी चाबी देखिए जो उन्होंने दी। जब इसरार ज़्यादा क्या, अगर आप ज़्यादा इसरार करें तो मैं एक चीज़ आपके लिए अर्ज़ कर देता हूँ, इसको अगर आप नज़र में रखेंगे तो कभी नुकसान, कभी घाटे में नहीं रहेंगे। वो ये कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम से पहले देखें कि अल्लाह इससे राज़ी है या नहीं। हर काम से पहले ये देखें अल्लाह इससे राज़ी है या नहीं। अगर आप इसको अपनी नज़र में रखेंगे तो कभी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। आप मजलिस पढ़ रहे हैं, ये ना देखें पब्लिक खुश हो रही है या नहीं, आप जो बोल रहे हैं अल्लाह उससे राज़ी है या नहीं। पब्लिक राज़ी हो या नाराज़ी हो बहस नहीं है। आज यही पब्लिक जो आपको वाह कर रही है, यही कल आपको गाली भी दे सकती है। लिहाजा आप इसको देख के रखें। उन्होंने मिसाल दी, आप इस तरह से रखिए, आप किसी के ऊपर हाथ उठाने जा रहे हैं, देखें अल्लाह इससे राज़ी है या नहीं। कहीं जा रहे हैं आप, देखें जो कदम आपका उठ रहा है अल्लाह से, अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सरमाया बना लें तो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। ये है मराजे कराम। आइए हसन अली नौखुदकी, कोई जवान गया उनके पास, कहा मौलाना में 3 चाबियां चाहिए आपसे। मिफ्ताह की बात है, 3 चाबियां। कहा क्या? क्या किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। लड़के लड़की के लिए परेशान रहते हैं और लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़कों को अच्छा रिश्ता मिल जाए। दोनों तरफ से दुआएं होती हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, उसके लिए कोई दुआ, कोई चाबी। चूँकि हसन अली नौखुदकी के बारे में आपने सबने सुना होगा कि बहुत बड़ी शख्सियत थी, इतनी बड़ी शख्सियत थी कि इमाम से डायरेक्ट उनकी बात होती थी। वो वाक़या भी सुना होगा उस लड़की का कि जो मरीज़ थी, इतनी ज़्यादा मरीज़ थी, मैं इसको अर्ज़ करके फिर आ जाऊँ अपने उस पर, इतनी ज़्यादा मरीज़ थी कि उसके भाई जब आए, डॉक्टर सारे जवाब दे चुके थे और उनके पास आए, वहीं सहन इनकलाब में बैठे थे, और हसन अली नौखुदकी से कहा कि बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कुछ पढ़ के पानी पे फूंक के दिया और उसके बाद जब जाके उसको पिलाया तो उसके बाद फिर उसकी तबीयत ऐसी ठीक हुई कि फिर कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। 3 महीने के बाद फिर भाई लोग उसी सहन में आते हैं और आगे हसन अली नौखुदकी, देखिए पहुँच कहाँ तक है उनकी। कहा कि बहन के सर में आज दर्द हो रहा है,
उनका ठीक है, जरी के पास जाते हैं, वापस आते हैं तो तुमको कोई नुस्खा बताते हैं। जरी के पास गए, वापस आए तो कहा आपकी बहन का तो इंतकाल हो चुका है। कहा नहीं आगा, सर में सिर्फ दर्द है, कोई ख़ास बात नहीं है। कहा नहीं, अभी मैं मौला के पास था, जो मैंने दुआ की तो मौला ने कहा उसकी रूह मेरे पास आई थी, फरिश्ते लेके आए थे और आसमान पे लेके गए, उसका इंतकाल हो चुका है। अब आप इतनी बड़ी शख्सियत, जिससे खुद इमाम खुमैनी गए थे इल्म कीमियाई लेने के लिए, आपने सुना होगा, 12 मैं वक्त नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा, उसमें है इल्म कीमियाई सीखने। इमाम खुमैनी जब पहुँचे थे इनकलाब से पहले, तो उन्होंने क्या नुस्खा बताया था। हसन अली खुद की जवान कहता है मुझे 3 चाबियां चाहिए, अच्छी लड़की से रिश्ता हो जाए, रोज़ी में बरकत हो जाए। रोज़ी में बरकत का मतलब नहीं कि इंसान करोड़पति बन जाए, 2 मिलियन में भी अपना खर्चा चला ले तो ये रोज़ी में बरकत है, जो सबको ताज्जुब होता है। तीसरी चीज़ का आक़िबत बखैर। हसन अली खुदकी ने क्या कहा, पहले नुस्खे का जवाब, पहले चीज़ की चाबी नमाज अव्वल वक्त, दूसरे की चाबी नमाज अव्वल वक्त, तीसरे की चाबी नमाज अव्वल वक्त। ये उन्होंने चाबी दी। आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम दूर हो गए हैं इन चाबियों से और गलत चाबियों से दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब आइए एक आपके सामने एक आम आदमी की मिसाल आपके सामने पेश करूं कि हम गलत चाबियों से दरवाज़ा खोल रहे हैं। इराक़ का वाक़या, कभी तौफीक होती थी हम सबको पैदल चलने की, अब नहीं मालूम खुदा वो कब दिन दिखाएगा कि फिर दोबारा इंशाअल्लाह शायद इस साल मौका मिले कि दोबारा अरबईन में पैदल चल सकें। अरबईन में पैदल चलते चलते हम मौला अब्बास के मौक़िफ़ में पहुँचे। ये किसी और का नहीं, हम अपना वाक़या सुना रहे हैं आपके सामने। मौक़िफ़ में पहुँचे मौला अब्बास के, खाने के बाद हरम के खादिम ने आके एक तकरीर शुरू की, एक वाक़या बयान किया जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। और भी इसलिए चूँकि वहाँ तकरीर क्यों होती है, इसलिए तकरीर तो नहीं होती चूँकि हम लोग हरम मासूमा की तरफ से मौक़िफ़ लगाए थे और मौक़िफ़ की तरफ से वहाँ गए थे। उसके बाद जब मौक़िफ़ ख़त्म हुआ तो हम लोग पैदल वहाँ पहुँचे थे, तो इसलिए वहाँ मात खुद्दाम की थी, तो उसमें जलसा हुआ और उसके बाद फिर ये तकरीर शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग जब हरम तौसिया कर रहे थे, जब हरम को बढ़ा रहे थे, तो आसपास की ज़मीनें ख़रीद रहे थे और सब ज़मीन ख़रीदते वक्त एक ऐसा घर था जिसने कहा कि मैं इसको 6 महीने बाद बेचूँगा। उसके मालिक ने कहा 6 महीने बाद इस मकान को मैं बेचूँगा। अब जब उसने मकान नहीं दिया, बाकी मकानात हमने ले लिए, तो चूँकि सहन बनाना था, बड़ा करना था, तो अब उस एक मकान की वजह से सारा काम रुका रहा। मीटिंग किया फिर हम खुद्दाम ने कि क्या किया जाए, तो बाद ने कहा काम चालू किया जाए, उसको बीच में रख दिया जाए। किसी ने कहा नहीं रोका जाए, जब एक हो वो भी मिल जाएगा तो पूरा एक साथ। नतीजे पे यही पहुँचे कि आखिर में जब वो घर ख़रीद लेंगे उसके बाद वो काम चालू होगा। अब काम उसी तरह रुका हुआ है। 6 महीने का अरसा गुजरने वाला था। उसके पहले उसके पास एक दुकान थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी चलाता था, अपने घर का खर्च। उस दुकान को उसने बेचा और उस मकान को रिपेयर करना शुरू कर दिया। दुकान बेच के मकान को रिपेयर किया, साफ़ सुथरा किया। अब सबको शक होने लगा कि भाई अगर इसको बेचना होता तो फिर ये दोबारा इसमें पैसा क्यों कर लगाता, जबकि इसको पता है कि हम लेने के बाद तोड़ के गिरा देंगे इसको, तो फिर फालतू में क्यों अपना पैसा इसमें खर्चा कर रहा है। अब और शक होने लगा कि शायद इसको बेचना नहीं है। बहरहाल जब 6 महीने का अरसा गुजर गया तो सारे खुद्दाम फिर उसके पास हुज्जत तमाम करने के लिए पहुँचे। उसके पास पहुँचने के बाद उससे कहा भाई आपने वादा किया था, उस वादे के तहत हम आपके घर आए हैं। कहा ठीक है, जब कहिए हम आपको मकान खाली करके दे देते हैं। कीमत का कोई कीमत नहीं, इसकी फ्री में दे रहे हैं। कह भाई मजाक नहीं, सही बताओ, अभी भी किसी को यकीन नहीं आ रहा है, वाकया क्या है, क्यों आखिर आप ऐसा कर रहे हैं। क्या मैंने कहा मैं फ्री में दे रहा हूँ ये मौला की बारगाह में। क्या फिर हमारे जहन में सवाल हैं, अगर उस सवाल के जवाब ही आप दे दें, वो सब आपके जहन में
सवाल आ रहे होंगे कि भाई आखिर जब तुमको बेचना ही था तो 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया? जब इसी तरह देना तो पहले दे देते, और फिर जब देना ही था तो फिर ये सारा पैसा इसमें क्यों लगाया तुमने फालतू में? ये सारी दुकान बेच के सब कुछ इसी में क्यों खर्च कर दिया? तो उसका जवाब सुनिए, हम आपके लिए नमूने अमल हैं। कहा जब उस वक्त आप आए थे तो ये घर मेरा इस लायक नहीं था कि मैं मौला की बारगाह में हदिया कर सकूं। जो कुछ था मेरे पास मैंने सब लगा दिया, अब मौला की बारगाह में हदिया कर रहा हूं। इस यकीन के साथ दे रहा हूं कि जहां दे रहा हूं वहां से खाली नहीं आएगा, वहां से एक देता हूं 10 गुना वापस आता है। इस यकीन के साथ इराकी क्यों खर्चा करते हैं? अरबईन में आप देखते हैं जिसके पास जो होता है खर्चा कर देता है। यकीन इतना है कि ऐसे को ऐसे सखी इब्न सखी को दे रहा हूं। यह है अजीजों, ये चाबियां जो इमाम ने हमारे लिए अर्ज की कि मिफ्ताहुल इल्म अस्सवाल, ये वो कुछ वो थे जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। इससे ज़्यादा आपका वक्त ना लूँ, एक वाक़या और रब्ते मसाइब। शब जुमा भी है और 2 जवानों के इसाले सवाब के लिए भी मजलिस है, वो भी कड़ियल जवान। वाक़या ये है कि ईरान से काफ़िला जा रहा था। शब जुमा की ज़ियारत की बड़ी फजीलत है, आप सब जानते हैं। और शब जुमा इस लिहाज से भी ज़्यादा करबला की ज़ियारत की फजीलत है चूँकि शहज़ादी भी आती हैं करबला, आइम्मा आते हैं करबला इमाम की ज़ियारत के लिए। ये काफ़िला काशान का ज़ाहिरन था, यहाँ से गया ज़ियारतों पे। जवानों का काफ़िला है, पैदल जा रहे थे करबला ये लोग। जब करबला के लिए पैदल निकल रहे थे तो जो काफ़िले के मौलाना थे वो जाने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा मौलाना मज़ा नहीं आएगा जब तक कोई मौलाना काफ़िले में ना हो, लिहाजा आप हमारे साथ चलें, जो ख़र्चा होगा आपका सुना है वाक़या सिर्फ रब्ते मसाइब के लिए, आप हमारे साथ चलें, हम आपका भी ख़र्चा पूरा देने को तैयार हैं। मौलाना को साथ लिया और पैदल चलते चलते, चूँकि मंजिल ब मंजिल काफ़िला रुकता था, एक एक मंजिल होती थी, मंजिल पे काफ़िला ठहरता था। एक आध मंजिल और बची थी कि काफ़िला जवानों का थक के चूर हो चुका था, अब हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। एक मंजिल पे ठहर गए और कहा मौलाना अब नहीं आगे बढ़ सकते। ये हमरा आप महसूस कर सकते हैं जो अरबईन पैदल चल के गए हैं कि जब इंसान थक जाता है तो फिर एक कदम भी चलना मुहाल हो जाता है, कि एक खम्भा भी और क्रॉस कर ले नहीं हो पाता। जवानों ने कहा बस। मौलाना ने उठ के तकरीर की, कहा शब जुमा ज़ियारत की बड़ी फजीलत है, और रिवायत भी है कि शब जुमा ज़ियारत करने वालों को जहन्नम से नजात मिलेगी। कहा कोशिश करो अपने आप को किसी तरह करबला पहुंचा दो, आज शब जुमा है और बहुत फजीलत है। जवानों ने हिम्मत बांधी और जो मंजिल बची थी उसको भी तय करते हुए सब करबला पहुंच गए। कहते पहली ज़ियारत की फजीलत भी है कि आप जिस हालत में हैं, जिस लिबास में हैं, उसी हालत में आप रोज़े के अंदर जाइए। सारे जवान रोज़े के अंदर, के बाद में होटल जाएंगे। हरम में गए और सब ने ज़ियारत पढ़ी। ज़ियारत पढ़ने के बाद मौलाना से कहा कि कोई नौहा निकालिए। आप जवानों की ख्वाहिश होती मातम करें, कोई नौहा निकालिए और हम मातम करेंगे। उन्होंने नौहा निकाला, जनाब अली अकबर का नौहा निकला। सारे के सारे जवान और सब ने खूब मातम किया, और मातम करने के बाद ये सारे जवान वापस होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद सब आराम करने लगे। आपने बारहा सुना होगा कि जो इमाम की ज़ियारत को जाता है, इमाम ख़ुद उसकी ज़ियारत को आते हैं। इससे बड़ी फजीलत हमारी और क्या हो सकती है ज़ाहिर करबला की, कि जो इमाम की ज़ियारत को जाता है, इमाम ख़ुद उसकी ज़ियारत को होटल में आते हैं करने के लिए। अजीज़ों, अभी हमें आपको इत्तला दी जाए कि यहाँ के रहबर आ रहे हैं आपसे मिलने, तो कितना बड़ा इफ्तिखार होगा। वक्त हमारे इमाम हमारी ज़ियारत को आते हैं, इससे बड़ी ज़ियारत की फजीलत क्या हो सकती है। सारे के सारे ज़ायरीन अपने अपने कमरों में जाके आराम करने लगे, लेकिन मौलाना अभी सोए नहीं थे। इस आलम में थे कि सोए और जगे। कितने में दक्कुल बाब हुआ। आने वाले ने कहा इमाम आ रहे हैं।
मौलाना कहते हैं कि मैं उठ गया, इमाम आए और एक एक कमरे में इमाम ने जाके एक एक ज़ायर की ज़ियारत की, और ज़ियारत करने के बाद हमारे पास आके बैठ गए, और आने के बाद कहते हैं 3 चीज़ का ख्याल रखना। क्या का? पहले तो ये कि जब वतन वापस जाना तो मेरा एक चाहने वाला है उसको सलाम कहना। हम और आप यहाँ से सलाम करते हैं, रोज़े में जाके सलाम करते हैं, सलाम का जवाब नहीं आता। इमाम वहाँ से सलाम भेज रहे थे, इमाम ने वहाँ से सलाम भेजा, वो पलट के आके देखता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इमाम ने सलाम भेजा है। क्या देखा? हाँ ज़ादारो, अराकीन नूर सकरैन वाले सुनिए कि इमाम ने सलाम क्यों भेजा था। अजीज़ों, वो क्या करता था, उसका काम क्या था? जब ज़ाहिर या जब मजालिस में लोग इमाम की मजलिस सुनने आते थे तो वो शख्स सबकी चप्पलें सीधी करता था। इमाम ने करबला से उसको सलाम भेजा। हाँ अजीज़ों, आप हजरात मजलिस बता करते हैं उस इमाम की, आपके लिए कितनी फजीलत है। हाँ अजीज़ों, इमाम ने वहाँ से सलाम भेजा, और उसके बाद इमाम कहते हैं अब आइंदा जब करबला आना और शब जुमा हो तो अकबर के मसाहिब न पढ़ना। मौला कोई ख़ता हो गई? कहा नहीं, ख़ता नहीं हुई है, लेकिन चूँकि मेरी माँ शहज़ादी ज़ारा शब जुमा मेरी मेहमान होती हैं, जब से तुमने अकबर के नौहे पढ़े, जब से तुमने अकबर के मसाहिब पढ़े, मेरी माँ तड़प रही है। मैं कहूँगा मौला शहज़ादी इतने दिन बाद भी अगर अकबर के मसाहिब सुनती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ होगा जब जवान लाश को देख के। अजीज़ों, यही वजह है कि इमाम ने जवान की लाश पे जब इमाम पहुंचे हैं, अजीज़ों जब जनाब अली अकबर चलने लगे इजाज़त लेके, चंद मिनट मसाहिब और सुनिए। अजीज़ों, जब जनाब अली अकबर बाप से इजाज़त लेके मक्तल की तरफ चलने लगे थे, अजीज़ों इमाम ने इजाज़त दे दी थी। जब इमाम का घोड़ा, जब जनाब अली अकबर का घोड़ा चलने लगा, इमाम पीछे पीछे चलने लगे। बाप का दिल है, जब घोड़ा दौड़ने लगा इमाम दौड़ने लगे। बाबा आपने तो इजाज़त दे दी थी, बाबा आपने इजाज़त दे दी, अब क्यों आ रहे? कह रहे मेरे लाल काश तुम भी साहिब औलाद होते, वो भी अकबर जैसा बेटा। हाँ अजीज़ों, जब जनाब अली अकबर मैदान में पहुँचे हैं और जब घोड़े से गिरे और आवाज़ दी वालेकुम मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए और मख्तल में ना आइएगा। अजीज़ों, जनाब अली अकबर ने क्यों कहा बाबा ना आइएगा? अजीज़ों, क्यों, क्या वजह थी? लेकिन इमाम कैसे चले वो मैं अर्ज़ करूँ। पहले जनाब अल्लामा नक्कन साहब अर्ज़ करते हैं कि जब इमाम ने आवाज़ सुनी तो इस तरह से चले जैसे 4 साल का बच्चा चलता है, घुटनियों के बल मेरा मौला चलता हुआ अकबर के सराहने पहुंचा। क्या देखा? जवान लाडला एड़िया रगड़ रहा है। खुदा किसी बाप को ये मंजर ना दिखाए। हाँ अजीज़ों, खुदा किसी बाप को ये मंजर ना दिखाए। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा था बाबा ना आइएगा। क्यों ना आइएगा? क्योंकि जवान की मैयत है, बूढ़ा बाप है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सराहने पहुंचे, जनाब अली अकबर एड़िया रगड़ रहे थे। हाँ अजीज़ों, और सीने पे हाथ रखे थे। एक बार बाप ने पूछा बेटा ये सीने पे? कहा बाबा बर्छी का फल है। एक बार हाथ को हटाया, घुटने को टेका और नजफ का रुख किया। ए बाबा, खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालना, बर्छी का फल निकला था कि जान रूह परवास कर गई। ए बाबा, मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। लेकिन इमाम ने क्या किया? लाशा उठाना चाहा, नहीं उठा सकते। क्यों कहा था जनाब अली अकबर ने? बूढ़ा बाप है, जवान की मैयत है, लाशा नहीं उठा सकते। यही वजह थी, रुक किया खैमे का। ए जवाना ने बनी हाशिम, आओ मेरी मदद करो, हुसैन का लाशा, अली अकबर का लाशा उठाना है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तज़फ़ीहा। माबूद हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। माबूद हाज़िर मजलिस और नाज़िर मजलिस की दिली मुरादों को पूरी फरमा। माबूद अराकीन मुअस्ससा नूरुस सकलैन को माबूद दिन ब दिन उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इसी तरह अहले बैत और उनके चाहने वालों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माबूद जहाँ कहीं भी हुसैन के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद इस वबा को जो दुनिया में इस वक्त जिसकी वजह से दुनिया परेशान है, माबूद तमाम से इस वबा का ख़ात्मा फरमा। ख़ास कर शियाने हैदर कर्रार को इस वबा से नजात दे। और माबूद
जो इस वबा की वजह से बेरोज़गार हो गए मौला उनकी रोज़ियों में दोबारा बरकत इनायत फरमा, उन्हें रोज़ी में उनकी तरक्की अता फरमा माबूद, और जो क़ैद में है मौला उन्हें जल्द जल्द रिहाई अता फरमा माबूद। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके खादिम और ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।